spite of following PVH protocol for several years and healing blocks, many have seen no change in prosperity. What more can be done? Madam, prosperity is something so difficult to understand, madam. Very difficult. It's not something you can flow within a minute. For some people, it's so fantastic, so great, madam. For some, take long time to do. Sometimes you don't hate money. You say bad about money. You must do that. Sometimes I say you must do 6 times, 7 times prosperity. You must do 5 times. I said it. You have to follow, madam. You have to follow all of these things properly. Prosperity is the energy flow. Where's the money going to flow from? India got no lottery also. Kerala got lottery. Here got no lottery. Where is your money flow? Malaysia, you put 4 numbers, you get 1,000 ringgit. You put 1 ringgit, 1,000 ringgit. There's a chance of money flowing. Here is hard work. Hard work is only way. Or somebody must give you the money. Who will give you the money? किसी ने प्रश्न किया कि कई वर्षों तक पीवीएच प्रोटोकॉल का पालन करने और अवरोध यानी कि ब्लॉक्स को हटाने के बावजूद कई लोगों ने अपनी समृद्धि में कोई बदलाव नहीं देखा है। इसके लिए हमें और क्या किया जा सकता है? इस पर शिवा सर कहते हैं कि समृद्धि को समझना बहुत मुश्किल है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जो 1 मिनट में प्रवाहित होने लगे। कुछ लोगों के लिए यह बहुत अच्छी तरह काम करती है, जबकि कुछ लोगों को इसे प्राप्त करने में लंबा समय लगता है। कभी-कभी लोग पैसे के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं, उससे नफरत तक करते हैं, जो समृद्धि के मार्ग में बाधक बन सकता है। कुछ मामलों में व्यक्ति को समृद्धि के अभिकथन यानी एफर्मेशंस को 6 या 7 बार तक दोहराना पड़ सकता है। इन सभी चरणों का सही ढंग से पालन करना आवश्यक है। समृद्धि का अर्थ ऊर्जा का प्रवाह है। यह ऊर्जा कहाँ से प्रवाहित होगी? भारत के कई प्रांतों में लॉटरी नहीं है, केरला में है, तो ऊर्जा कहाँ से प्रवाहित होगी? मलेशिया में लॉटरी में यदि आपने 4 नंबर लगाए तो आपको 4 गुना पैसा यानी 4,000 रुपये मिलेंगे। 1 नंबर लगाया तो 1,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से पैसे की ऊर्जा प्रवाहित होती है। भारत देश में पैसा या तो कड़ी मेहनत से कमाया जाता है या कोई किसी को पैसा दे तो मिल सकता है, लेकिन कोई किसी को पैसा क्यों देगा? The people come to me, madam, they rich, and somebody just come their money and walk away. This also happen to people. So money is not easy. You have to find a way to do it properly, do the money, attract money in your life. But you pray to the wrong energy, but how the money going to come? Many people pray to the wrong energy, but how the money going to come? Tell me. It's a process of money flowing. That's why we do prosperity affirmation, do divine fire for money, do the mudra. You should do meditation every day, and then you want money come. How money going to come? कई लोग शिवा सर के पास आकर यह शिकायत करते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है, इसीलिए पैसा आसानी से नहीं मिलता। व्यक्ति को धन आकर्षित करने के लिए सही तरीके खोजने होंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा। बहुत से लोग गलत ऊर्जाओं से जुड़कर प्रार्थना करते हैं, तो उनके जीवन में समृद्धि कैसे आएगी? उन्होंने समझाया कि समृद्धि का प्रवाह एक प्रक्रिया है, इसीलिए समृद्धि अभिकथन पढ़ने एवं दिव्य अग्नि करने और समृद्धि मुद्रा जैसे उपायों को अपनाना चाहिए। यदि हम पूरे दिन सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठे रहेंगे तो समृद्धि कैसे आएगी? Yesterday somebody came. The picture of his guru was a naked guru. How is money going to come at him? Naked, almost naked guru, only something here. And he's still like that, all things. How's the money going to come? When your profile picture is somebody who's got no money. You must change your profile, you must attract money, madam. Attract money, money must come to you. It's not that easy, madam. Money is not easy to flow. It's very difficult. Over the years, you put so much of blocks about money, madam. You go to any form of meditation, money is not important. What's the point? You want moksha, moksha, moksha. People give all the money to all this guru and say they want moksha. सर ने उदाहरण देते हुए बताया कि एक व्यक्ति उनसे मिलने आए थे, जिनके मोबाइल के प्रोफाइल पर एक नग्न साधु की तस्वीर थी। जब हमारी प्रोफाइल की तस्वीर किसी ऐसे व्यक्ति की है जिनके पास
पैसा या धन नहीं है तो हमारे पास समृद्धि कैसे आएगी? हमें अपने विचार बदलने होंगे तथा धन को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। वर्षों से समाज ने समृद्धि पर अत्यधिक संदेह और अवरोध डाले हैं और हम सब यह कहते हैं कि समृद्धि महत्वपूर्ण नहीं है, मोक्ष ही लक्ष्य है। इसी सोच के कारण लोग सारा धन गुरुओं को दे देते हैं और मोक्ष की इच्छा जताते हैं। One guy came from New Delhi. He came to my class. He said he gave 30 crores. 30, I don't know how many crores, madam. He gave Asharam Babu. Yes, thinking that he's going to be like a VIP there. VIP for 2 weeks only. All money gone. Then come back to the house again. No house now. Children don't respect him. All gone. Asharam Babu took it. Finished. Now Asharam cannot give back. He's in jail now. नई दिल्ली में सर की क्लास में आए किसी व्यक्ति के बारे में सर ने बताया कि उन्होंने कुछ करोड़ रुपए तकरीबन अपना सारा धन आसाराम बापू को दे दिया, यह सोचकर कि बाबा के संगठन में उनके साथ हमेशा वीआईपी जैसा व्यवहार किया जाएगा। उनके साथ सिर्फ 2 हफ्तों तक वीआईपी जैसा व्यवहार किया गया। उनका सारा धन चला गया। वहाँ से लौटने पर उनके पास ना रहने के लिए कोई घर था और उनके बच्चों ने भी उनका सम्मान करना छोड़ दिया। सारा धन आसाराम बापू ने ले लिया, जो अब जेल में बैठे हैं। समृद्धि पाना मुश्किल है क्योंकि कई सालों से हमने इन विचारधाराओं को पकड़ के रखा है, जिससे हमें स्पष्टता लानी चाहिए। Because over the many years we put this thought form, madam, how to clear this thought form. But we do clear it from the aura. Yes, madam, then you must find a way where the money is going to flow to you. Where the money will flow to you? From my work. Work, some more? From Business, business. got to work hard, competition, Yeah. all things, madam. You start doing, madam, you start doing. Okay. Something will change. So when we are doing that, do we heal the money or the business? Both, madam. Or ourselves? Both money for the business, do divine fire for the money, everything for Indian rupees. Start doing, madam. Okay. Start doing. Yes, madam. एक प्रतिभागी ने पूछा, हमारे ऑरा से समृद्धि के अवरोध को हटाने के बाद भी समृद्धि क्यों नहीं आती? सर कहते हैं कि हमें समृद्धि के प्रवाह के लिए कोई रास्ता खोजना होगा जहाँ से पैसा हमारे पास आएगा, जैसे कि हमारा काम, हमारा व्यवसाय, हमेशा कड़ी मेहनत करना, प्रतिस्पर्धा वगैरह। समृद्धि के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमें सचेत रूप से काम करना शुरू करना चाहिए, तभी कुछ बदलेगा। हमें पैसे के साथ साथ व्यवसाय को भी हील करने की ज़रूरत है। पैसे, व्यवसाय, भारतीय रुपए, पैसे के प्रवाह से जुड़ी हर चीज़ के लिए दिव्य अग्नि करना शुरू करना चाहिए।